day 4. Now we are going to start with this, and today we are going to solve 4 questions, lead code 4 questions. Also, I would be requesting after these sessions, you must continue your lead code strikes or kind of stuff, so that it it should be motivated or can say आप लोगों को भी motivate करेगी वो चीज़. Fine. Give me a minute. Yeah. Fine. So I would be requesting a thumbs up if my voice and audio both are clear, please. Yeah, sure. Thanks a lot. So in today's class, we are not going with the detailed overview of the fundamentals what we have discussed in the previous classes or kind of stuff, but we are going with the small intros and kind of stuff. So moving with the syntax, what is a syntax? Syntax is basically we can say the introduction, what we uh, how we write a program or a kind of stuff. Syntax is used in everything. For example, if you are writing a document also उसका भी एक syntax होता है, as you all know. ठीक है. तो syntax is nothing, it introduce you the basic Python program syntax. ठीक है. अगर मैं इस पर क्लिक करते हैं तो it only shows how to write a Python का program or these kind of stuff. Firstly, define main functions to print out something. Firstly, we have defined something. Then moving with I is equal to 1. Why they have written I is equal to 1? कोई बता सकता है please? कोई भी. कोई दिक्कत नहीं है. If you are not getting a things, plus I would be requesting you as per the rules, you can hand raise your thing. Also, you can open your mic if you are facing any doubts. ठीक है. Also, I would be requesting to please sessions को थोड़ा interactive बनाना है. तो इसका simple meaning होता है जो I होता है it notifies the variable name कह सकते हैं, and the equals to goes with the assignment operator, and 1 is the integer value. So you are assigning an integer value 1 to the variable I. You can simply say this. Maximum is equal to 10. We have written these kind of syntaxes. हमने 4 दिन में बहुत चीज करी थी. Three questions and 4 questions in yesterday's class we have done. Now जो हम नीचे पे return main और return कोई भी calling function देते थे तो उसको basically we can say it's a kind of calling function which is called main bracket के अंदर. Fine. And moving with the comments क्या चीज होती है? Comments are these are the important as for the codes because they describe why the piece of code is written. For example, आपने जो भी चीज लिखी है वो क्यों लिखी है. ठीक है. What are the identifiers? Identifiers are the name that identifies variable, function, modulus, class या फिर कोई भी चीज को identify करने के लिए we basically use identifiers. ठीक है. The name of an identifier need to begin with letter, underscore or any with the following characters can be alphanumeric or the underscore type of thing. ठीक है. And आइडेंटिफायर्स आर द केस सेंसिटिव. ठीक है. अगर आपने कुछ भी कैपिटल या फिर स्मॉल लिखा तो इट विल चेंज योर आउटपुट या फिर वो एरर दे देगा. नाउ मूविंग विद द कीवर्ड्स. व्हाट आर द कीवर्ड्स? सम वर्ड्स दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन पाइथन तो उसको हम बेसिकली कहेंगे कीवर्ड्स होते हैं. एंड देयर आर 32 कीवर्ड्स इन पाइथन जो कि हम नॉर्मली अपनी कॉलेज लाइफ में और इन द थिंग्स हम लोग पढ़ते हैं. सो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग यू सभी कि 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर देयर जो कि हम लोग नोट डाउन. यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट. फाइन. सो कीवर्ड्स का मतलब होता है सम वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन पाइथन. फॉर एग्जांपल फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, क्लास, फाइनल, इज, रिटर्न, लैम्डा, एनीथिंग काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है. जो जो इसके अंदर आ रहे हैं, इफ, एल्स. ठीक है. इतनी चीज समझ में आई? आई गेस सभी को समझ में आई होंगी. या ठीक है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ समरी जो कि आप लोग ट्रैक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम दैट आइडेंटिफाइज वेरिएबल, फंक्शन, मॉड्यूलस, क्लास और भी बहुत सारी चीजें.
कमेंट डिस्क्राइब व्हाई कोड वर्क्स, ठीक है, दे आर इग्नोर्ड बाय द पाइथन कंपाइलर। कभी भी आप कोई भी कमेंट लिखोगे तो उसको एस्ट्रिक कैन से कि उस पे लिखते हैं और वो इग्नोर होते हैं बाय पाइथन कंपाइलर। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यूज ऑफ सिंगल नोट, डबल नोट, ट्रिपल नोट ऑन काइंड ऑफ डिनोट्स द स्ट्रिंग लिटरल। ये आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कहीं उतना नहीं आता है। मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज ए वेरिएबल? कोई मेरे को बता सकता है वेरिएबल्स क्या होते हैं प्लीज? इन द डे 1 एंड डे 2 वी हैव डिस्कस्ड द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स अगर आपको नहीं पता तो एक्चुअल डेफिनेशन फॉर वेरिएबल गोes a variable is a name used to store data in memory. Example, x is equal to 10, name is equal to, if I am going to write Karthik, and pi is equal to pi की वैल्यू होती है 1.3.14। सो x स्टोर्स इंटीजर क्योंकि x इज इक्वल टू हमने 10 बोला था, एंड नेम स्टोर्स द स्ट्रिंग क्योंकि नेम इज इक्वल टू कार्तिक है, एंड इट्स ऑन डबल नोट। स्ट्रिंग कभी भी डबल नोट्स में आएगी इफ यू आर राइटिंग इन योर प्रोग्राम। एंड पाई स्टोर्स फ्लोट नंबर, फ्लोट नंबर्स इफ यू आर नॉट गेटिंग, तो फ्लोट नंबर्स होते हैं जिसके बाद डेसिमल स्टार्ट, डेसिमल वाले नंबर कह सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द फ्लोट नंबर जो कि आपको पता होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये चलता कैसे है, चलेगा कैसे, हाउ इट वर्क्स, x इज इक्वल टू 5 प्रिंट x, तो क्या प्रिंट होगा इफ आई एम राइटिंग x इज इक्वल टू 5 एंड प्रिंट x? कोई बता सकता है? कमेंट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज। x is equal to 5 and we are writing print x. Yeah, 100%, thanks a lot, we will be getting the output of 5। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल। मूविंग विद स्ट्रिंग नंबर बुलियन। बुलियन क्या चीज होती है? कभी भी हम कोई भी इन ए प्रोग्राम वी आर लुकिंग इनटू ट्रू और फॉल्स, तो उसको वे बेसिकली डिफाइंस बुलियन। नाउ मूविंग विद कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, या कांस्टेंट से पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ टेक्स्ट रिटन इनसाइड कोड्स। जैसे मैंने आपको कोड्स बोला था, कोई भी चीज इफ यू आर राइटिंग इन कोड्स तो इट इज बेसिकली कॉल्ड स्ट्रिंग। एंड नंबर्स तो आपको पता है, बुलियन भी वी आर नोइंग कि बुलियंस क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट इज ए वैल्यू दैट शुड नॉट चेंज, ठीक है। अगली बार हमने जैसे पाई की वैल्यू, पाई इज इक्वल टू 1.34, तो वो कभी चेंज नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। नाउ मूविंग विद द फोर इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर आता है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या जितने भी वो हैं काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी बेसिकली यूज। Moving with the assignment operators guides you how to like assign a value to variable. For example, equals to, greater than, less than, नहीं, इक्वल्स टू, या वही चीज होती है असाइनमेंट, ठीक है। असाइनिंग ऑपरेटर्स कह सकते हो आप इसको। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर्स टू वैल्यू। कभी भी आपको इफ यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स, फॉर एग्जांपल कोई ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है, वी हैव टू कंपेयर, तो वी विल बी यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स shows you how to use logical to combine the multiple condition। फॉर एग्जांपल मैं एक कोड के अंदर बहुत सारी पाइथन की या फिर लूप्स वगैरह का यूज करता हूँ, या फिर कंडीशंस का यूज करता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाता होगा, सॉरी, हाँ, तो उससे आपको पता चल जाता होगा कि किस टाइप का लॉजिक लगाना है। इट इज यूज्ड फॉर लॉजिक बिल्डिंग। नाउ द सेक्शन नंबर 3 गोस, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई सभी को जितना हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अभी फॉर टुडे एंड टुमारो वी आर गोइंग फॉर द ओवरव्यू ओनली, ठीक है। वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन ए बिट मिनट। थम्स अप फ्रॉम एवरीवन अगर किसी को थोड़ा सा भी समझ में आया।
ओनली अश्विनी को समझ में आया क्या? वी हैव मोर लोग, मानसी एंड मानसी, धीरज। Karthik, Mansi also from technical team. Okay, sorry for that. Now moving with the section number 3, flow, control flow. ठीक है, जो कंट्रोल फ्लोज आर लाइक फॉर एग्जांपल जो भी कंडीशंस हम लोग डालते हैं, हाउ टू कंट्रोल, फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग इफ कंडीशन, इफ एल्स, एलएफ कंडीशन, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू। ठीक है, तो हमारी ये जो तीन कंडीशंस होती हैं, इफ एल्स वाली स्टेटमेंट, दीज आर द स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ एल्स वाली, इसमें हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट ए कोड ब्लॉक बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन दी जाती है तो वी बेसिकली गोज विद इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ मूविंग विद वाइल। ठीक है, ये दो चीज आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत मिनिमम जगह आपको पूछा जाएगा या फिर नहीं भी पूछा जाता। बट वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, दीज फोर आर द थिंग्स जो कि आपसे पूछी जाती है वाइल interviews or a kind of anywhere you can ask in your Python OPP also. Now moving with break, while commands. While command क्या बोलते हैं? While command shows you how to execute a code block as long as condition is true. ठीक है, while loop क्या ज़्यादा कुछ नहीं है. It only shows how to execute a code block as long as condition is true. Now moving with break. Break का मतलब होता है learns how to exit a loop permanently. परमानेंटली कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि वो छोड़ ही देता है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना आफ्टर द ब्रेक कमांड्स। मूविंग विद द कंटिन्यू वाला पार्ट, कंटिन्यू स्टेटमेंट shows you how to skip the current loop iteration and start the next one। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंडीशन दी कुछ भी तो वो उस कंडीशन को छोड़ के दूसरी कंडीशन में चले जाएगा, दैट मीन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। मूविंग विद द पास, पास shows you how to use the pass statement as a placeholder। पास पहले प्लेस होल्डर्स होते हैं, ठीक है, फिर वो एग्जैक्टली उसको पास कर देते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। नाउ मूविंग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, लिस्ट, टपल्स, इनकैंडोस्टर्स सभी को आते हैं। टुडे वी आर गोइंग विद द इजी क्वेश्चन which is 27, remove the elements। या विद दिस क्वेश्चन, अगर हम सिंपली इसको पढ़ते कि इस क्वेश्चन बोलता क्या है। ठीक है, रिमूविंग ऑफ एलिमेंट, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किसी चीज को रिमूव करना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, गिवन ए इंटीजर एरे, नॉर्म्स एंड ए इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वी एल उसका मतलब वैल्यू है। ठीक है, रिमूव ऑल द अकरेंस ऑफ वैल्यू इन नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जज विल टेस्ट योर सॉल्यूशन एज पर द दिस काइंड ऑफ स्टफ्स। ठीक है, इंटीजर नॉर्म्स, इंटीजर वैल्यू, ये चीजें उसने हिंट्स के लिए दी हैं। मूविंग विद द इनपुट्स, इनपुट क्या बोलता है? इनपुट बोलता है नॉर्म्स इज इक्वल टू थ्री, थ्री टू टू थ्री, वैल्यू हमें थ्री करनी है, तो आउटपुट गोज टू। आउटपुट वाई इज वाई इट इज गोइंग टू, क्योंकि उसने नॉर्म्स इज इक्वल टू 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 दिया है। If you are moving with the explanation, your function should return k is equal to 2 with the first two uh, elements of num being 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है, एक नम्स है वो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, एक वैल्यू है जिसमें आपको नंबर्स रिमूव करने हैं। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रिमूव ऑल द अकरेंस ऑफ वैल्यू इनसाइड द सेम लिस्ट। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना है, रिमूव द अकरेंस ऑफ वैल्यू इनसाइड द सेम लिस्ट एंड रिटर्न हाउ द एलिमेंट्स आर लेफ्ट और नॉट इक्वल्स टू वैल्यू।
ठीक है, लेट अस सपोज जैसे इसने भी दिया है 3223 एंड द वैल्यू इज 3, इसका नॉर्म्स का वैल्यू आ रहा है 22 बिकॉज टू एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल्स टू 3, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग आउटपुट 2 एंड नॉर्म्स इज इक्वल टू 2 फाइन। अब इसका बहुत छोटा सा सॉल्यूशन इफ यू आर राइटिंग, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड उस चीज के लिए वी आर गोइंग टू राइट सिंपल केस सॉल्यूशन k is equal to 0 and then we are using the loop wala format if unknowns। ठीक है, अब ये सारी लाइंस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, एक बार मैं भी खुद लॉजिक लिख लेता हूँ बिकॉज आई एम राइटिंग अभी। Yeah, sorry for the typo. If you are writing this k plus equals to 1 then we are returning फाइन। अगर मैं इसको टेस्ट केस का रन करता हूँ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप, गिव मी अ मिनट। या इट्स 100% फाइन, इट्स एक्सेप्टेड एंड फाइन। ठीक है, तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, k इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन बताऊं तो k का मतलब क्या है, k कीप्स ट्रैक जो कि हमारा वेर प्लेस जितने भी नंबर्स है उन चीजों का वैल्यू जो है वो ट्रेस कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक लूप लगा दिया थ्रू एरे और उसके अंडर एक कंडीशन डाल दी, इफ एलिमेंट डज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, अगर वैल्यू के इक्वल्स टू नहीं होगा तो वो करेगा पुट इनसाइड इंडेक्स के और इंक्रीज की। जैसे ही एलिमेंट्स वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, सेकेंड टाइम आई एम रिपीटिंग, इफ एलिमेंट्स डज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू इट विल पुट इनसाइड इंडेक्स के एंड इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीज करेगा द वैल्यू ऑफ के, देन फाइनली इट विल रिटर्न के। फाइन। तो इफ वी आर मूविंग विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने इसमें ज्यादा कुछ झमेला नहीं करा इनपुट वैल्यूज या फिर इंक्रीजिंग ऑफ द सॉल्यूशन, तो वी विल बी गेटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज ओ एन। फाइन। अगर हम एरेज बढ़ाते तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती ओ वन, अभी के लिए इट्स ओ एन, क्योंकि एज पर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस और द थ्योरेटिकल पार्ट द थिंग्स वर बेसिकली ओ एन ही होता है मेजरली। फाइन। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया गाइस? थम्स अप फ्रॉम एवरीवन अगर आपने करा। फाइन, आई गेस सभी को समझ में आ गया। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट्स तो इट्स ओपन फॉर यू कि आप यहाँ पे कोई डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन सिंपली आस्क। ठीक है, आई गेस आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट एंड ये भी चीज ले ली होगी। देन वी आर मूविंग विद द अदर पार्ट। We are moving with the 15th number problem, which is it's a kind of medium problem, which is three sum.
थ्री नंबर्स को हमें ऐड करना है, देन वी हैव टू राइट लॉजिक अपना, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फॉर यू, गिवन एन इंटीजर array num, return all the triplets num I, num j, num k, such that I does not equals to j, I does not equals to k, and j does not equals to k. ठीक है, then we have to sum I plus j plus k equals to 0. For example, we are getting a value nums, एक list दे रखी है, nums is equal to -1 0 1 2 -1 4, and we are getting output as -1 2 -1 0 2. दो हमें लिस्ट इसके बाद एक्स्ट्राज में मिल रही हैं. तो सीधा सा काम क्या है, एक लिस्ट है, ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखा है, उसको हमें ऐड करना है. ठीक है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, और कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन इज नो डुप्लीकेट, इसमें कोई भी डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं होना चाहिए. एंड सेकंड कंडीशन इज ऑर्डर डज नॉट मैटर. फाइन. तो इसका जो है सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा इफ यू आर गोइंग फॉर द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन एंड शॉर्ट द एलिमेंट्स. ठीक है, नम्स कॉमा शॉर्ट हम इसको करेंगे. आई एम सेइंग इफ यू आर वर्किंग है इन लाइव क्लास, ठीक है, डेली के इफ यू कैन सॉल्व 5 क्वेश्चंस, तो इट्स अ क्वेश्चन नंबर 5 विच यू कैन सॉल्व हियर. num dot short, we have to short the जो भी हमारी list है and the arrays they have given, उसको short करना है, and we are going with the empty result. Then we are using the loop for I in range len nums, and then we are using the property to skip the duplicates. For the skip of duplicates, we will be using for I greater than 0 and nums equals to nums I minus 1. ठीक है, it is the condition we are using here to uh, skip the duplicates. Then we are using the control statements which is named as continue. Fine, इतनी चीजें समझ में आई होंगी. Firstly we have done shorted the array, then we have skipped the duplicate value. Now we are moving with the next step. ठीक है, आई गेस यहाँ पर तक सभी को समझ में आ गया होगा. इफ यू आर नॉट गेटिंग, तो यू कैन सिंपली रेज योर हैंड एंड आस्क इन डाउट सेक्शन. फाइन. नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, वी आर यूजिंग लेफ्ट वाला पार्ट. फर्स्टली हमें लेफ्ट जो भी लिस्ट है उसको लेफ्ट में लाना है, देन वी हैव टू गो विथ राइट वाला पार्ट. सो वी विल बी राइटिंग लेफ्ट इक्वल्स टू आई प्लस 1 minus 1. Then we will be writing a condition of while left is less than right. ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें आई विल बी हेल्पिंग यू कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी एंड द लॉजिक वाई वी आर यूजिंग इट हेयर. ठीक है, फर्स्टली हमने एरे को शॉर्ट करा, देन वी हैव फिक्स्ड वन नंबर, कोई भी वन नंबर को हमने एज ए रिजल्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट में करा. ठीक है, देन थर्ड स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी यूज टू पॉइंटर्स. लेफ्ट को मूव राइट करना है और राइट को लेफ्ट करना है, तो उसी की कंडीशन वी आर यूजिंग इट हेयर, वी आर यूजिंग हेयर. ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट की कंडीशन लिख रहे हैं. तो फॉर लेफ्ट वी आर राइटिंग टोटल इक्वल्स टू num I plus nums
लेफ्ट कॉमा नहीं नॉर्म्स आई प्लस total equals to 0, and we are going to append nums comma nums. ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी वी हैव रिटन हियर. नाउ वी विल बी राइटिंग अ प्रॉपर्टी टू रिमूव ऑल्सो. इसके बाद के जितने डुप्लीकेट्स हैं इट विल स्किप दिस. ठीक है, उसके बाद while f equals to नो, हमने लेफ्ट साइड के लिए वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला प्लस इक्वल्स टू 1 आई गेस. एक सेकंड देना. फॉर द लेफ्ट पार्ट 0 1 2 we are using the um, sorry left minus plus 1. Then we will be writing left plus equals to 1. Then we will be writing the while property left for the right वाली condition we will be using minus equals to 1. ठीक है, then we will be defining left plus equals to 1, right minus equals to 1. Fine, and we will be using elif total is then 0, left plus equals to 1. Is equals to 1. Then we are going to return the values. ठीक है, इतना ही काम करना है. आई नो इट्स थोड़ा सा लेंदी काम. ठीक है, if I'm going to test run this. Fine. The test cases are passed and the solution goes correct. I guess I am audible and my screen is visible. Give me a second. Yeah, perfectly fine. So the test cases, 316 test cases by 316 test cases are passed. So if I'm going to explain you the part, ठीक है, हमें 3 सम करवाने थे नंबर्स के and we have to find out the thing. Fine. फर्स्ट में जो ये चीज लिखी है, इट इज अ सिंटेक्स एंड दिस is the lead code requires solution inside a class name solution. ठीक है, lead code का एक syntax होता है जो कि हमें लिखना पड़ता है. Now why we have written nums dot short.
वो क्या करता है, इट शॉर्ट्स द एरे। और क्यों करता है, ठीक है, शॉर्टिंग क्यों करता है, क्योंकि हमें टू पॉइंटर को टू पॉइंटर मेथड्स को यूज करना है, एंड वो हेल्प करता है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने में इजीली। फाइन, so that's why we have used shorted here. And why we are using result is equal to empty bracket, it creates the empty list to store the answers जितने भी होंगे हमारे। Now using for I in range length s, नहीं, length of nums, length, we fix one number at index I according to the question। हमें इंडेक्स आई जे के फॉर्म में सब चीज को शॉर्ट आउट करना है। सो वी विल बी यूजिंग नम्स को इंडेक्स आई, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग द केसेस। ठीक है, हमने उसके आगे कंडीशन डाल दी, इफ आई ग्रेटर देन जीरो एंड नम आई इक्वल टू आई माइनस वन, then we are using the continuous statement, then we have denoted left or right, left side क्या है, right side क्या है, and then we will be comparing more। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट साइड, एंड सेकेंडली वी हैव टू आइडेंटिफाई राइट साइड। फॉर द लेफ्ट साइड व्हाट वी आर यूजिंग प्लस इक्वल्स टू वन, and we are right side we are using minus equals to 1, which the questions like identifies। ठीक है, जितना हमें पता चला उसके अकॉर्डिंग हमने करा, एंड द सॉल्यूशन मैचेस। तो मेक श्योर, आई वुड बी रिक्वेस्टिंग टू टेक एक स्क्रीनशॉट, अगर नहीं तो अभी एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा इफ यू हैव अ डाउट। इफ यू हैव डाउट तो यू कैन थम्स डाउन, या फिर आप माइक खोल सकते हैं, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। And if you are not facing any doubts, so we can simply continue। thumbs up दे दो एक बार। फाइन, तो इट वाज अ मीडियम क्वेश्चन, और ये कंपनी में भी पूछते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल एंड काइंड ऑफ स्टफ्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। टू सम्स, थ्री सम्स, अमेजोन या फिर गूगल कंपनी में दे यूजुअली आस्क। फाइन, नाउ मूविंग विथ टू generate parenthesis short। Now moving with fourth sum, ठीक है, fourth sum, but we have to do in fourth sum, same concept and same things we have to apply, but उसका method थोड़ा सा different we can say, या फिर same method होगा, and we have to apply it in our sum। Fine, so now we are going with this fourth sum wala part। If I'm going to explain you the question says given an array nums an integer n, return an array of four unique quadrals, triples, ठीक है, num a, num b, num c, num d। Zero less than equals to a, b, c, d, and कैन से ए बी सी डी बड़े होने चाहिए जीरो से, या फिर इक्वल्स टू होने चाहिए। ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये तीनों चेंज होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम मेथड, एवरीथिंग यू हैव टू पुट देयर। लेफ्ट के लिए प्लस इक्वल्स टू वन, राइट के लिए माइनस इक्वल वन, यही चीज लगानी है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आप लोग मीडियम साइज के बहुत इजीली यू कैन सॉल्व। फाइन, मूविंग विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी रैंडम क्वेश्चन इफ यू आर गोइंग टू पुट अप, इफ यू आर गोइंग विथ हार्ड,
Yeah, regular impression matching. It is a kind of hard question. आज हमें दिख जाएगा कि hard question किस टाइप के होते हैं and how to solve them. Regular impression matching का question है, and if I'm going to read the question says given an array, नहीं, given an string S and print pattern P, implement regular impression matching the support of this. ठीक है, नॉर्मल डॉट मैचेस द सिंगल कैरेक्टर एंड एस्ट्रिक मैचेस जीरो एंड मोर देन द एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग विद द इनपुट s इज इक्वल टू a, p इज इक्वल टू a, देन आउटपुट इज फॉल्स. ठीक है, वाई आउटपुट इज फॉल, ए डज नॉट मैच विद द एंटायर स्ट्रिंग ए. हमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग को मैच करवाना है एंड वी हैव टू स्टार्ट द सॉल्यूशन. Fine. So firstly, what we have to do, we will be giving m comma n equals to length of s comma length of p. ठीक है, हमने ये दो चीजें अभी के लिए डिफाइन करी है. मूविंग विथ dp इज इक्वल टू कोई भी आप बना सकते हैं, x बना सकते हैं या फिर कुछ भी. वी विल बी राइटिंग फॉल्स asterisk and +1. आई एम जस्ट ट्राइंग. ठीक है, कोई भी एरर आ सकता है बीच में, मेक श्योर टू, कोई भी टाइपोज हो तो प्लीज टेल. Now we have to handle the pattern वाला part. For that I am using the looping system for p, नहीं, for j in range to n plus 1, which will identify if p j minus 1 ठीक है. Fine. Then we will be writing dp0 0 0 z0 equals to dp0 j equals to -1. हाँ, तो यू कैन सी इट हियर कि हमारा जो एक टेस्ट केस है वही पास हुआ है, 2 टेस्ट केसेस आर नॉट पास. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर मूविंग विद द टेस्ट केस 1, तो वो खाली पैटर्न को मिसमैच कर रहा है एंड फॉल्स की प्रॉपर्टी इट कैन शो. इन टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 1 क्या बोलता था, टेस्ट केस 1 खाली कैरेक्टर्स को मैच कर रहा था एंड टेस्ट केस 2 मैचेस द एस्ट्रिक वाला पार्ट एंड 3 ऑल्सो. ठीक है, नाउ आई गेस हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ऑफ एस्ट्रिक नहीं यूज करी है, तो वी हैव टू यूज इट. ठीक है, एलिफ के बाद इफ पी जे -2 equals to s I -1 और p j -2. एंड सॉरी गाइज इफ यू आर फीलिंग बोर, सो इट्स ए काइंड ऑफ जिसमें हमारा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है. आई वुड बी रिक्वेस्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस
एक दिन में 3 क्वेश्चन भी कर लोगे तो इट्स वेरी मच फाइन फॉर यू. आफ्टर दैट आपकी आदत लग जाएगी वो करने की. प्लीज मेक श्योर टू डू दीज काइंड ऑफ स्टफ्स फॉर योर ओपीपी एंड any kind of OPP. Yeah, fine. अब I guess if I'm directly submitting it, क्या मेरे टेस्ट केस पास होंगे? Yep, it's 100%ly fine and ये चीज़ हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है. Now moving with what we हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ लिखी. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन. ठीक है, इसको हम करते हैं हटाते हैं एंड टेस्ट केसेस को हम करते हैं डाउन. ठीक है, टेस्ट केस नहीं, आई हैव डन सिंपली रन. ठीक है, तो डीपी इज इक्वल टू फॉल्स इन इट. ये जो लाइन आई हैव रिटन हियर, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, एक डीपी टेबल को क्रिएट करता है ऑफ ऑफ साइज m+1 इंटू n+1. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक फॉल्स n+1 फॉर आई इन रेंज n+1, तो ये हमारी एक छोटी सी टेबल को क्रिएट करता है विच इज यूजफुल एंड हमें वो क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है, ये लाइन समझ में आई होगी. देन उसी के नीचे लिखा है डीपी 0, ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू ट्रू. इट शोज एम्प्टी स्ट्रिंग मैचेस एम्प्टी पैटर्न, नथिंग एल्स. पहले में वी हैव क्रिएटेड ए डीपी टेबल, देन वी आर राइटिंग एम्प्टी स्ट्रिंग मैचेस एम्प्टी पैटर्न. ठीक है, अब हमें करना क्या था, हमें एक एस्ट्रिक को और एक नॉर्मल कैरेक्टर को एप्लीकेशन से मैच करवाना था, तो वी हैव रिटन दिस. नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, लूपिंग को स्टार्ट करेंगे फॉर j इन रेंज 2, n+1. इफ दिस, अगर वो एस्ट्रिक वाला होगा तो वो काउंट करेगा, नहीं होगा तो नहीं काउंट करेगा. इफ वो नॉर्मल कैरेक्टर होगा, अगर नॉर्मल जैसे हमने पहले लिखा था, इट वाज ओनली द कंडीशन फॉर द नॉर्मल कैरेक्टर. अगर ए से ए, एस में ए है एंड पी में ओनली ए इज देयर, तो इट इज काइंड ऑफ नॉट मैचिंग, तो वो मैच नहीं करेगा. तो सिंपल सी चीज है कि वो कैरेक्टर मैच करेगा. देन वी आर मूविंग विद द एस्ट्रिक वाला पार्ट एंड डॉट वाला पार्ट. ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर लाइक थोड़ा सा हार्डर टाइप. मेक श्योर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देन वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट और द वी कैन से अदर वंस. ठीक है, कहीं पर को कुछ डाउट है तो यू कैन सिंपली आस्क. आई गेस ये पार्ट आपको किसी को समझ में आया नहीं आया, थम्स अप थम्स डाउन. ठीक है, नॉर्मल पाइथन है, नथिंग एल्स. डेटा टाइप्स और ये चीजें हमने पढ़ी थी, इनपुट वेरिएबल, स्ट्रिंग्स एंड काइंड ऑफ. थम्स अप फ्रॉम गाइस इफ यू आर एक्टिव, या फिर आप लोग कर रहे हो. वी आर वेटिंग फॉर 5 मिनट्स. ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन. फाइन. सो आई गेस सभी को इस चीज समझ में आ गई. नहीं तो यू कैन ऑल्सो टाइप इन कमेंट बॉक्स.
Now moving with the next question, what we are going to use is integer to Roman numbers. ये हमने पहले रोमन टू इंटीजर करा है इन प्रीवियस क्लास, आई गेस सभी को पता होगा. इफ नहीं पता तो आई कैन शो यू द सॉल्यूशन एंड द स्टफ्स. गिव मी सेकेंड. ठीक है. हाँ, तो हमने रोमन टू इंटीजर में क्या करा था, रोमन नंबर्स को डिफाइन करा था कि भाई ये मेरे रोमन नंबर्स हैं. कल ही हमने क्वेश्चन करा था. एंड उसके बाद हमने एक रेंज लूपिंग सिस्टम लगा दिया था फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी हमारी स्ट्रिंग थी. देन इफ आई प्लस वन लेस देन लेंथ, तो वो रोमन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहा था. एंड वो प्लस ले जा रहा था, इक्वल्स टू ले जा रहा था, इस टाइप से कर रहा था. ठीक है. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग विथ इंटीजर टू रोमन नंबर. हाय, क्या हुआ? या इंटीजर टू रोमन नंबर्स के में ऐसे. और वैल्यू x कॉमन हो जाएगा. श्योर. तो इसमें भी हमें यही करना है. वी है दे हैव गिवन द सिंबल आई. सिंगल आई का मतलब होता है वन, एज यू ऑल नो. वी का मतलब होता है फाइव, एक्स का मतलब होता है टेन. फाइन. सो हमें जो की आइडिया दिया है, दे हैव गिवन इफ यू हैव टू राइट फोर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन प्लस फोर, आई प्लस वी, इट इज डिनोटेड एज फोर. एंड नाइन को हम कैसे लिखते हैं, वन प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. 3749, फोर नाइन को हम लिखते हैं आई एक्स, तो दे हैव रिटन आई एक्स. ठीक है. तो हमें पहले यहाँ पर को क्या करना पड़ेगा, हमें एक वैल्यू, जैसे हमने वहां पर को पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने वैल्यूज असाइन नहीं करके रोमन नंबर्स को असाइन करा था, लेकिन हम यहाँ पे को वैल्यूज को असाइन करेंगे. 1000 कॉमा 900 प्लस 500 400 कॉमा 100 कॉमा 90 कॉमा 50 कॉमा 40 10 कॉमा 9 कॉमा 5 कॉमा 4 कॉमा 1. ठीक है. ये जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं या फिर नंबर्स हैं, इन लोगों ने पहले से असाइन करें. हम वही चीज कंप्यूटर को दे रहे हैं, नथिंग एल्स. उसके बाद हम सिंबल्स को भी देंगे कंप्यूटर को कि भाई ये ले पकड़, सिंबल्स भी है, अब तू जा और इसको कंपाइल कर. ठीक है. फॉर वी विल बी राइटिंग एम कॉमा सी एम then we are going to write d comma ठीक है. तो ये चीजें लिखनी है. एम सी एम डी तक हमारा पूरा हो गया था. सी डी वी हैव टू राइट, देन वी हैव टू राइट सी, देन एक्स सी, देन वी विल बी राइटिंग एल. ठीक है. ऐसे करके मूविंग विद द नेक्स्ट, वी हैव टू राइट एक्स एल कॉमा एक्स कॉमा we will be writing ix, which will be going into comma v. ये नंबर जितने भी हम असाइन कर रहे हैं अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने क्वेश्चंस में दे हैव प्रोवाइडेड अस. ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स. आई
तो हमारे वैल्यूज एंड सिंबल्स असाइन हो गए. देन वी विल बी राइटिंग result equals to ये empty, oh sorry, empty result. Then we are going to use for I in range len values. Then we will be writing the command while num is then equals to values I. Then we have to nothing return tsult. ठीक है, इतनी ही चीज करनी होगी. असाइन करनी है वैल्यू जो कि इन्होंने दे रखी थी, एंड नथिंग एल्स वी हैव टू डू. एंड इफ यू आर गोइंग टू चेक द टेस्ट रन, तो आई गेस सभी ही टेस्ट रन पास हो गए होंगे. या ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O1 के साइड पे ही आ रही है, विच वी आर सॉल्विंग इट. इफ आई एम गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, तो इसमें वी हैव फर्स्टली असाइन द वैल्यूज, जो भी हमें वैल्यूज इन लोगों ने दी थी. देन द सिंबल्स, कि सिंबल्स क्या क्या असाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. ठीक है, दिस यहाँ पर कुछ जैसे आई वी एक्स, ये जितनी प्रॉब्लम्स इन लोगों ने दी थी हमने यही पुट करी है यहाँ पर को. एंड वी हैव एक रिजल्ट की लिस्ट बना कह सकते हैं. ठीक है, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे रखी है. देन वी आर यूजिंग द लूपिंग सिस्टम फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ वैल्यूज. ठीक है, उसमें वी विल बी असाइनिंग वैल्यूज, वो ऑटोमेटिकली जाते रहेंगी और वो कंडीशंस को चेक करते रहेगा. नम ग्रेटर देन वैल्यू होगी तो वो रिजल्ट को प्लस करेगा, नहीं तो नंबर को माइनस करेगा, विच विल फाइनली कैरी अवर रिजल्ट, नथिंग एल्स. ठीक है, these questions are easy and the 10 to 15 liner questions, and I can guarantee you इस टाइप के questions are asked in Python OPP also. Roman to integer नहीं, but normally they ask these concept. इतना concept वो हर question OPP 1 में they usually ask these kind of stuff. ठीक है, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी ये क्वेश्चन. या टेक योर टाइम, किसी को कोई डाउट हो तो फिर यू कैन आस्क. आई गेस ये भी चीज सबका क्लियर है. ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास, वी हैव सॉल्व कितने 4 या 5 क्वेश्चंस टुडे वी हैव सॉल्व. ठीक है, यू कैन सॉल्व 2 to 3 मोस्ट लाइक इजी वाले, टू सम्स, ऐड टू नंबर्स. अगर किसी को नहीं आता तो यू कैन आस्क इन tomorrow's class. Tomorrow will be the final ending of the sessions. ठीक है, so now we are going to conclude today's session. So I would be requesting the coordinators to stop the recording, and yeah.